Hello everyone, how are you? Myself Ramesh Thakur. I welcome you all on my YouTube चैनल फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे। फॉर्मूला जो कि फर्स्ट यूनिट में हम यूज करेंगे। क्या क्या फार्मूले आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज उन फॉर्मूलों की हम बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट के चैप्टर फर्स्ट कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, गॉस थ्योरम में और कैपेसिटेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सबको हम इकट्ठा कैसे कंपाइल कर सकते हैं। पहले हम बात करें कूलम्स लॉ की, तो हम Q is equals to plus minus NE। ओके, यहां से हम दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q by E। We can find out how many electron a body will lose or gain। ओके, देन हम बात करेंगे कूलम्स के लॉ की, दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square। ये फॉर्मूला है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, जहां पे हम 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 9 into 10 raised to power 9 यूज करेंगे। ओके जी, उसके बाद हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम F is equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square in the direction of R बोल सकते हैं। ओके, और हम इसको और कर सकते हैं, F AB is equals to minus of FBA। कूलम्स का लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी करता है। कोलम्बियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होती है, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन joining the centers of the two charges, and Coulomb's law is applicable only for two charges, 2 point charges। बेसिक फॉर्म वही रहेगी। और F12 इसको हम F12 भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू F21 विथ माइनस साइन। ओके, और F12 is equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R1 minus R2 whole magnitude Q and R1 vector minus R2 vector when charges are located at position vectors। This is important, and F21 that is equals to Q2 Q1 divided by 4 pi epsilon naught R2 difference of the magnitude, Q of the difference of the position vector R2 minus R1 and R2 minus R1, and this is vector। ये कूलम्स के लॉ की फॉर्म है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन we are having more than two charges, then we can write Fi is equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation I varies from 1 to n, j varies from 1 to n, and I not equal to j, and Qi Qj upon
I minus Rj difference of the cube of the difference of the magnitude of Ri and Rj and Ri minus Rj vector. This is Coulomb's law in terms of position vectors. Coulomb's law in terms of position vectors. इसके लिए हम यहाँ बात कर सकते हैं Q is equals to plus minus NE and N is equals to Q by E. ये फॉर्मूला एक ये था। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएं तो हम बात कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R square and in the direction of R. when पोजीशन वेक्टर में बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R प्राइम magnitude Q and R minus R prime and vector. This is in terms of electric field in terms of superposition principle, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation I varies from 1 to n Qi R minus Ri magnitude cube and R minus Ri vector. In dipole moment में P is equals to 2qa, that is dipole moment, and electric field on axial line due to dipole, magnitude of it that is equals to 2p divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square का whole square, and that is r, or when r is for greater than a, then this will become equals to E on axial line, that is equals to 2p divided by 4 pi epsilon naught r cube, 2p upon, this is for axial line. And for equatorial line, we can say E on equatorial, that is equals to P divided by 4 pi epsilon naught R square plus A square and whole 3 by 2. Or when R is for greater than A, then E on equatorial comes out to be P divided by 4 pi epsilon naught R cube. आप देख रहे हैं फोर्स 1 बाई आर स्क्वायर से वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर स्क्वायर से वेरी कर रही है, लेकिन डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब से वेरी कर रही है। और रिलेशन की बात करें, E on axial line is equals to 2 times E on equatorial line. This is the relationship between, it means electric field on axial line is double the on same distance on equatorial line. इनके एक्सियल लाइन पे 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो 10 सेंटीमीटर पे इक्वल लाइन की आधी हो जाएगी, दैट इज E/2। ये कहने का मतलब है। फिर हम डाइपोल की टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, और दिस डाइपोल इज सेड टू बी इन stable equilibrium when theta is 0 and in unstable equilibrium when theta is equals to 180 degree. और दिस इज टॉर्क इज मैक्सिमम, तो हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। आप न्यूमेरिकल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और टॉर्क इज मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू PE सिंपल, because in this case theta is equals to 90 degree, it means sin theta is equals to 90 equal to, or
इन रोटेटिंग द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें डाइपोल की, दैट इज इक्वल्स टू माइनस P डॉट E और U is equals to minus PE cos of theta, and work done in rotating the dipole, that is equals to minus PE cos of theta 2 minus cos of theta 1. This is the work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. This is इस तरह से हम इनको, these are the formula which we can remember, किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इनको। तो टॉर्क की हमने बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, देन हम और बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम लाइन, जब हम पोटेंशियल की बात करें तो वर्क डन इन, दैट इज WAV इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B, दैट इज इक्वल्स टू E.dl। line integral is equal to work done or potential, that is equals to, potential is equals to infinity to R E dr. This is the potential at a point with minus sign. Work done, that is in taking a charge from infinity to any point P to a distance R in the electric field of the source charge, और पोटेंशियल हम बात करें WAV डिवाइड बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू दैट इज V माइनस VA and that is equals to dV, potential difference. This is the work done. Or when work done from infinity to R QR, that is equals to potential at R. पोटेंशियल एट आर, दिस इज पोटेंशियल एट आर। आप हमें कर सकते हैं, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल करते हुए आपने चीजों का ध्यान रखना। दिस इज VV माइनस VA, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, VA is equals to BV is equals to dV and that is equals to 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in taking a charge from A to B is independent of the 1 by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA। It is independent of the path, RA minus RB लिख सकते हैं, RA minus RB। It is independent of the path। Line integral do not depend, and line integral of electric field over a closed loop is always equals to 0। And both electric field and gravitational field are the examples of conservative fields। ये कंजर्वेटिव फील्ड्स के एग्जांपल्स हैं क्लोज लूप के ऊपर। दैट्स व्हाई नो वर्क इज डन इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन वंस अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज क्लोज्ड पाथ के ऊपर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। ओके, देन अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, potential at any point, that is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R। that is potential R से वेरी कर रहा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, और जब आपके पास पोटेंशियल निकालना हो when charge is located 4 pi epsilon naught R minus R prime and magnitude, और जब हमारे पास क्या हो,
जब सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें, नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस Vn होता है, और नेट पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई ब्रिज फ्रॉम 1 to n and Qi divided by R minus Ri and magnitude of R minus Ri vector. This is Qi, then I varies from 1 to n. Then electrostatic potential energy for system of electrostatic potential energy. Potential energy for system of two charges. System of charges that is equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R1 2 and mod of it. This is electrostatic potential energy for the system of two charges. Okay, and that's why where R1 minus it is R1 minus R2. अगर system of three charges हो, for system of three charges, then U is equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught and R1 2 magnitude plus Q1 Q3 divided by 4 pi epsilon naught R1 3 and plus Q2 Q3 divided by 4 pi epsilon naught R1 2 3 and magnitude where R1 2 is equals to R2 minus R1. Similarly, R3 is R3 minus R1 and R23 is R3 minus R2. This is like for this is the when the system of charges are there, then net work done in bringing the system of charges from infinity to their respective positions from the common origin. From कॉमन ओरिजिन से हम इनको ये कर सकते हैं. दिस इज ये आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हम कर रहे थे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं. देन पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू फॉर ए शॉर्ट डाइपोल की बात करें, शॉर्ट डाइपोल के केस में तो जो पोटेंशियल हमने निकाला था दैट इज इक्वल्स टू P dot R divided by 4 pi epsilon naught L square cos square theta minus A square cos square theta. Or V is equals to P divided by हम P लिखें P divided by 4 pi epsilon naught R because when A square is then it is L square cos square theta. Potential due to a short dipole on V is equals to on that is equals to 4 pi epsilon naught R and V on equatorial line that is equals to 0. Axial and equatorial line of the dipole. Then हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. इसको हम dV बाई dl लिख सकते हैं, इसको हम माइनस dV बाई dr भी लिख सकते हैं, इसको माइनस dV अपॉन dx भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें. और इन जनरल कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिखें, इसको हम V बाई R लिखें, चाहे आप इसको V बाई D लिखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल, तो वी कैन राइट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई एल के बराबर होता है। दिस इज relationship between electric field and electric potential because electric field is negative gradient of potential। ठीक है, हम जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है, और जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है, लेकिन यहाँ साथ में क्लोज लूप भी होता है। ओके, और जब जब E इज पैरेलल टू ds हो तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल्स टू E ds ही रह जाता है, बिकॉज cos of theta, because you will write that is equals to E ds cos of theta, and cos of theta is equal to 1 when theta is equals to 0 degree हो। थीटा क्या हो, it is equal to 0 degree। और जब आपके पास when E is perpendicular to ds आ जाए तो फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है, नो फ्लक्स इज देयर। और जब थीटा जो हो 180 डिग्री हो तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू ई डी एस विथ माइनस साइन। तो फ्लक्स इज मैक्सिमम, फ्लक्स इज मिनिमम, लेकिन फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू दैट इज dot product of electric field vector and area vector over that closed surface, and that is equals to, and this is called Gauss theorem। इसको हम क्या बोलते हैं, it is called Gauss theorem। और Gauss theorem के हमने, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, due to line charge, that is equals to lambda divided by 2 pi epsilon naught r is the electric field due to line charge distance, electric field due to a conducting sheet of charge, that is sigma by 2 epsilon naught, electric field due to a conducting sheet of charge, that is equals to epsilon naught, and surface charge density sigma is equals to QIA। ओके, ये इस तरह से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, और इन ए रीजन ऑफ स्पेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेर एवर E इक्वल टू 0, dV इज इक्वल्स टू 0 एंड V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। When charge is given to a spherical hollow conductor, when charge is given to a spherical hollow conductor, then whole charge resides on the outer surface of the conductor, and inside the conductor charge is equals to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0, जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर पोटेंशियल कहीं पे, अगर सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 वोल्ट ही रहेगा। दैट्स वाई when charge is given to a spherical hollow conductor, whole charge resides on the outer surface of the conductor। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स आर those substances which hold the charge या allows electric influence to pass through them, but
do not conduct at all are called dielectrics बोलते हैं उसको. The strength of the dielectric maximum value of external applied field up to which they allows the electric influence to pass through without their electrical breakdown and inducing the charges of opposite polarity on the both sides of the dielectric when placed in external electric field, then this is called polarization of the dielectrics. And relationship between electric susceptibility and dielectric constant, that is equals to 1 plus chi. K is equals to 1 plus chi is the relationship between dielectric constant, and dielectric constant is equals to ratio of the force in vacuum to force in medium in Coulomb's law, and this is equals to ratio of the original electric field to the reduced value of electric field, and it is equals to C by C naught in capacitors. Capacitors में this is the dielectric constant. Dielectric constant in in force K is equal to F vacuum by F medium. In electric ratio of electric original to reduced value of electric field, it is the capacitance after inserting a dielectric slab and before inserting the dielectric slab. Capacitance capacitance is equals to C is equals to Q by V, ratio of capacitance of parallel plate capacitor. This is equals to A epsilon naught by D, and that is also equal to Ka epsilon naught by D, where K is dielectric constant. And capacitance of parallel plate capacitor in the presence of, that is equals to C naught conducting 1 minus D by D. 1 minus D by D. This is for conducting slab. This is for conducting slab. And for dielectric slab, C is equals to C naught 1 minus D by D into 1 minus K. That is equals to, this is when T is equals to D, then C is equals to infinite. And when in this case T is equals to D, then C is equals to Kc naught. So we can find out the value of dielectric constant or the value of C when a dielectric slab is placed between the plates of the capacitor. Okay. Then energy stored in the capacitor, that is equals to half CV square, or U is equals to half Q square by 2C, and U is equals to half QV. These are the three forms of energy stored. Energy stored per unit volume of the capacitor is equals to half epsilon naught E square. This is energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume of the capacitor. Okay. Then when capacitors are connected in series, then equivalent capacitance is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus so on. And when the capacitors are connected in parallel, then Cp is equals to C1 plus C2 plus so on. We can find out equivalent capacitors in series combination as well as in parallel combination of the capacitor. Series and parallel combination of the capacitors. This is all about, अगर हम यूनिट की बात करें, चार्ज का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज that is Q, that is equals to coulomb and stat coulomb and stat coulomb, and 1 coulomb consists of 0.625 into 10 is to power 19 or
6.25 into 10 is to power इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम बात करें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ, दैट इज F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square, और that is equals to, we can write K Q1 Q2 by R square, where K is constant of proportionality। K के जो यूनिट होते हैं, it is a dimensional constant होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो के होता है, कैपिटल के होता है, वो 1/k होता है। फिर ये दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में फर्क होता है जी। तो दैट्स वाई इसके जो यूनिट होंगे कि कैपिटल के को हुए, दैट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैंने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ वेयर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12 एंड कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की। और एक होता है एप्सिलॉन, और एक होता है एप्सिलॉन आर। एंड दिस इज परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी इन ए मीडियम, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, एंड परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, and K, it means K is numerically equals to epsilon R. Dielectric constant and relative permittivity are numerically equal. Dielectric constant is equals to relative permittivity के बराबर होते हैं numerically। ओके, तो अब यहाँ से आप इनको फॉर्मूला की बात कर रहे थे, यूनिट की हम बात कर रहे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है। ये आपके पास न्यूटन मीटर इनवर्स वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है, जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है। देयर आर 3 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के, 3 यूनिट वोल्ट पर मीटर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है उसका ईए होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईए, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। न्यूटन मीटर होता है जूल, जूल पर कूलम होता है वोल्ट, तो दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वोल्ट मीटर। और इसका मतलब है फ्लक्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर में कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब है दोनों का यूनिट वोल्ट मीटर ही होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू न्यूमेरिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, यहाँ से फ्लक्स की बात कर ली। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल की बात करें। इसका मतलब कि ई डॉट डी एल ही क्या होता है? पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल जो होता है वो वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो पोटेंशियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम, एंड दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बन गया? वोल्ट मीटर। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट मीटर, एंड पोटेंशियल का वोल्ट। ओके, पोटेंशियल का हमारे पास क्या आ गया? वोल्ट आ गया। कैपेसिटेंस का
कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, और दैट इज इक्वल्स टू कूलम बोल्ट इनवर्स, और कूलम बोल्ट इनवर्स को हम फैरड बोलते हैं, जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप बोलते हैं कि फैरड इज ए वेरी बिग और इनकन्वीनियंट, और जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। और स्फेरिकल कंडक्टर अर्थ की जो कैपेसिटी होती है, अर्थ इज आल्सो ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी दैट इज रेडियस दैट इज 6400 किलोमीटर्स, इट्स कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 711 माइक्रोफैरड। कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरड। और हमने कहा था कि बिकॉज फॉर ए कैपेसिटर टू हैव ए कैपेसिटी ऑफ 1 फैरड, इट्स रेडियस शुड बी इक्वल्स टू that is 9 into 10 is to power 9 meter. It is greater than the radius of earth. Say radius earth होता है 6400 किलोमीटर, that is 6.4 into 10 is to power 6 meter. It means r is far greater than the radius of earth. That's why it's not possible to fabricate a capacitor of capacity 1 farad. That's why farad is a practically inconvenient and that is not appropriate unit of capacitance. That's why हम किसका यूज करते हैं? We talk millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad की हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी याद कर सकते हैं। उनकी डायमेंशंस की बात करें तो हम चार्ज की जो डायमेंशंस होती हैं वो 80 होती हैं, फोर्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो MLT-2 होती हैं। कूलम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कूलम्स लॉ में F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जो डायमेंशंस होती हैं दैट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगी? F R स्क्वायर डिवाइड बाई Q स्क्वायर। F की होती है MLT-2, R की होती है L स्क्वायर, और चार्ज की होती है 80। तो क्या बन गया? A स्क्वायर T स्क्वायर, Q स्क्वायर था, तो दैट इज इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की डायमेंशंस ML3 T-4 A-2 आर द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो क्यू स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस की बात करें तो देयर इज M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। ये डायमेंशंस होंगी एप्सिलॉन नॉट की। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस होगी MLT-2 एंड divided by 80, so that comes out to be MLT-3 A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायमेंशंस होंगी। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की होती है ML2T-2, चार्ज की होती है 80। तो पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस ML2T-3 A-1 होती हैं। कैपेसिटेंस की डायमेंशंस, कैपेसिटेंस चार्ज टू पोटेंशियल होता है, और आपने चार्ज की होती हैं 80 और पोटेंशियल की होती हैं ML2T-3 A-1। तो क्या बन गया जी? तो कैपेसिटेंस की डायमेंशंस होंगी M-1 L-2 T4 A स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक जल्दी रिवीजन, हाउ मेनी फार्मूलाज आर देयर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दे आर रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो हम बहुत सारे फॉर्मूले की बात करते हैं,
डाइपोल मोमेंट 2qa के बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पीई कॉस ऑफ थीटा के बराबर होती है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है. एंड बाय कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स वी कैन remember. So this is all about the electrostatics. Thank you very much.